ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਗਣਿਤ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਰਕਲ ਚੱਕਰ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਿੰਦੂ Q ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ Q ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो बाहर एक बिंदु Q है, Q तो इस ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ठीक है, इस बिंदु ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Q ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ Q ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ Q ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। तो इसी ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ O ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ P ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। OQ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, OQ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OP ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, OP ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ, तो इस सवाल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो सब तो पहला मान लो कि ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ O ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ O ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ P ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿੰਦੂ P ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਬਿੰਦੂ P ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, Q ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ QP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ OQ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ OP ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ OPQ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ OP ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ OP ਸਿਖਰ ਲੰਬ QP ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਅਨੁਸਾਰ पाइथागोरस थ्योरम अनुसार त्रिभुज समकोणी त्रिभुज OPQ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OQ ਹੈ। तो ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ ਲੰਬ ਦਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PQ ਹੈ, PQ ਦਾ ਵਰਗ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ QP ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ OP ਦਾ ਵਰਗ। OP ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, OQ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਦਾ ਵਰਗ ਆ ਜਾਏਗਾ। PQ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ PQ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ 24 ਦਾ ਵਰਗ ਆ ਜਾਏਗਾ। OP ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ R ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ OP ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 25 ਦਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 625, 24 ਦਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 576 ਜਮਾ R ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ R ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। 625 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 576 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦੇंगे दूसरी साइड जाके,
625 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 576 ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਚਦਾ ਹੈ 49, ਠੀਕ ਹੈ 49। तो आर की कीमत पता करने के लिए असी जो इधर वर्ग है दूसरी साइड जाके वर्गमूल बन जाएगा। आर की कीमत साढ़े को आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक। इस तरह चक्कर का जोड़ा अर्ध व्यास है वो साढ़े को 7 सेंटीमीटर बन जाता है। इसलिए चक्कर का अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। बहुत सौखा सवाल है, यदि थोड़ा जिहा अभ्यास करोगे तो बड़ी आसानी के नाल समझ भी आएगा तो पेपर के बहुत चंगे ढंग के नाल तुसीं कर भी पाओगे। इस तो बाद अगला सवाल तुसीं देख सकते हो स्क्रीन पर, एक बिंदु ए तो जो कि चक्कर के केंद्र तो 5 सेंटीमीटर दूरी ते है, चक्कर के स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चक्कर का अर्ध व्यास पता करो। ये भी बिल्कुल उस ढंग के नाल है। इस तरह के जिन्ने भी सवाल ने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पाइथागोरस थ्योरम की वरतों जी की जाएगी। सो चक्कर का केंद्र जो असीं पहला मान लैने कि बिंदु ओ के उत्ते स्थित है, ठीक है। ये साडे कोल बिंदु ओ है। इस तो बाद बाहर एक बिंदु है ए बिंदु तो इस चक्कर नूं एक बिंदु ए तो जो कि चक्कर के केंद्र तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सब तो पहला तो केंद्र तो जी इस बिंदु की दूरी है वो असीं इत्थे लिख लवांगे, ये साडे कोल 5 सेंटीमीटर बनेगी, ठीक है। इस बिंदु ए तो जी चक्कर नूं स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो इस बिंदु तो असीं चक्कर नूं स्पर्श रेखा जी खिंच लवांगे, ठीक है। और इसकी जी लंबाई है सानूं 4 सेंटीमीटर दी गई है। और इस चक्कर का भी असी अर्ध व्यास पता करना है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही ये वाला सवाल भी हो जाएगा, ठीक है। इस बिंदु नूं असी स्पर्श बिंदु नूं बी बिंदु का नाम दे लैने। ये साडे कोल समकोणी त्रिभुज जिहड़ी वो पहलां वांग ही बन जाती है, ठीक है। हल मान लो चक्कर का केंद्र बिंदु ओ ते स्थित है, मान लो चक्कर का केंद्र बिंदु ओ ते स्थित है, ठीक है। बिंदु ए तो ए बी चक्कर नूं स्पर्श रेखा है, चक्कर नूं स्पर्श रेखा है, ठीक है। ए बिंदु तो ए बी जी स्पर्श रेखा है, तो बी साडे कोल जिहड़ा स्पर्श बिंदु हो गया। हुण इहदे विच जिहड़ियां लंबाइयां सानूं पता ने, ओ ए दी लंबाई सानूं पता है, ओ ए 5 सेंटीमीटर दिता गया है जो कि साडे कोल इस त्रिभुज का कर्ण बनेगा। ए बी आधार है जो कि स्पर्श रेखा है, साडे कोल स्पर्श रेखा की लंबाई जिहड़ी वो 4 सेंटीमीटर दिती गई है, ठीक है। तो फिर पहलां दी तरह इहदे विच अते ओ बी शिखर लंब ए बी है, ठीक है। स्पर्श रेखा के उत्ते स्पर्श बिंदु ते जिहड़ा अर्ध व्यास बनता वो हमेशा स्पर्श रेखा नूं लंब हुंदा है। तो फिर असी समकोणी त्रिभुज ओ बी ए दे विच लिख सकते हैं, समकोणी त्रिभुज ओ बी ए विच पाइथागोरस थ्योरम अनुसार पाइथागोरस थ्योरम अनुसार, हाँ जी बच्चे। तो फिर साडे कोल की बनेगा, कर्ण दा वर्ग बराबर आधार दा वर्ग जमा लंब दा वर्ग, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कर्ण अपने कोल है इहदे विच ओ ए, तो ओ ए दा वर्ग आ जाएगा। आधार है साडे कोल ए बी दा वर्ग आ जाएगा। लंब साडे कोल है ओ बी, ते ओ बी दा वर्ग जिहड़ा इत्थे बन जाएगा, ठीक है। तो कर्ण की जी लंबाई है सानू 5 सेंटीमीटर दी गई है, इतने 5 का वर्ग कर देंगे। ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। ओ बी असी पता करना है जो कि चक्कर का अर्ध व्यास है। तो 5 नूं 5 नाल गुणा करांगे तो बची आएगा 4 चौके 16 जमा ओ बी स्क्वायर।
तो ओ बी वर्ग की जी कीमत है साढ़े कोल बन जाती है 25 माइनस 16 25 घटाओ 16 ठीक है 25 चों 16 कटांगे तो साढ़े कोल 9 प्राप्त होएगा। सो ओ बी का जोड़ा स्क्वायर है साढ़े कोल 9 के बराबर है तो ओ बी की कीमत पता करने लिए 9 का वर्गमूल जोड़ा वो असी करांगे ये साढ़े कोल आ जाएगा 3 ठीक है। तो ओ बी जो कि चक्कर का अर्ध व्यास है इसकी लंबाई साढ़े कोल 3 सेंटीमीटर बन जाती है ठीक है। इस तरह चक्कर का अर्ध व्यास 3 सेंटीमीटर है ठीक है। ठीक है विद्यार्थियों, तो भी बिल्कुल 2 सवाल असीं इक्को ढंग दे कर लेने ते बड़ी सौखे ढंग दे नाल इन्हां नूं समझिया जा सकदा है। इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल है दो समकेंद्री चक्करां दे अर्ध व्यास 5 सेंटीमीटर ਅਤੇ 3 सेंटीमीटर ਹਨ। ਸਮਕੇਂਦਰੀ ਚੱਕਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਮਕੇਂਦਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਉਸ ਜੀਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਕੇਂਦਰੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਦੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਠੀਕ ਹੈ। तो अंदाजे ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂ O ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਉਸ ਜੀਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। तो ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੋਵੇ ठीक है। तो असी देख सकते हैं इस जीवा का नाम असी ए बी रख लें। तो ए बी जी जीवा है वड्डे चक्कर की वतर है कॉर्ड है बट छोटे चक्कर की स्पर्श रेखा है ठीक है। तो असी इस जीवा की ए बी की जी लंबाई है वो पता करनी है ठीक है। तो ये असी सब तो पहला ओ नू स्पर्श बिंदु के नाल इत्थे मिला देंगे ठीक है। तो ओ नू असी ए दे नाल भी मिला देंगे ठीक है। तो मान लो जोड़ा साडे कोल स्पर्श बिंदु है ये साडे कोल है बिंदु M ठीक है। तो वो जोड़ा है साडे कोल वड्डे चक्कर का केंद्र है ठीक है। और इस केंद्र की ये साडे कोल एक जीवा है ठीक है। तो और ये जीवा जी है छोटे चक्कर की स्पर्श रेखा है। हुण OM जोड़ा है छोटे चक्कर का अर्ध व्यास है। तो अर्ध व्यास जोड़ा है वो स्पर्श रेखा नूं स्पर्श बिंदु ते हमेशा 90 डिग्री के कोण के उत्ते मिलता है। तो OM जोड़ा है AB के उत्ते की होएगा लंब होएगा ठीक है। इसे ढंग के नाल असी ये भी सानू ध्यान च रखना पेगा कि जिहड़ा वड्डा चक्कर है इसकी ये जीवा है तो जीवा के उत्ते केंद्र तो खिंचिया गया लंब जीवा नूं दो बराबर भागां दे विच वंडदा है भाव कि AM ते BM इन्हां दोनों की लंबाई जिहड़ी है वो साडे कोल की होएगी बराबर होएगी ठीक है। तो पहली चीज़ तां असीं ये देखनी है कि छोटे चक्कर नूं ये स्पर्श रेखा है AB इसलिए केंद्र तो जो असी रेखाखंड खिंचांगे स्पर्श बिंदु नूं मिलावांगे केंद्र के नाल तो ये जिहड़ा अर्ध व्यास है ये स्पर्श रेखा के उत्ते शिखर लंब होएगा ठीक है। इत्थों साडे कोल शिखर लंब आ जाता है। इस तो बाद वड्डे चक्कर दी क्योंकि ये साडे कोल जीवा है ठीक है और जीवा के उत्ते असीं केंद्र तो एक लंब सुट्टिया है इसलिए जिहड़ी जीवा है वो साडे कोल दो बराबर भागां दे विच वंडी जाती है। इन्हां चीज़ां नूं ही इन्हां दी वरतों करके असीं जीवा की जिहड़ी लंबाई है वो पता करांगे। हुण इहनूं किवें लिखना है वो असीं देखते हैं और ये जोड़ा साडे कोल वड्डे चक्कर का अर्ध व्यास है उसकी लंबाई साडे कोल 5 सेंटीमीटर है। छोटे चक्कर की जिहड़ी लंबाई है वो साडे कोल 3 सेंटीमीटर ठीक है। तो आओ लिखते हैं हल। मान लो पांच सेंटीमीटर अते 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले अर्ध व्यास वाले
दो समकेंद्री चक्रां दा केंद्र, दो समकेंद्री चक्रां दा केंद्र बिंदु O उत्ते स्थित है, बिंदु O ते स्थित है। ठीक है, इस तो बाद ए बी, रेखाखंड ए बी वड्डे चक्कर दी जीवा, वड्डे चक्कर दी जीवा या वतर या कॉर्ड, ठीक है, जीवा अते छोटे चक्कर दी स्पर्श रेखा है। छोटे चक्कर दी स्पर्श रेखा है जिसदा कि स्पर्श बिंदु M है, जिसदा कि स्पर्श बिंदु M है। ठीक है, तो ओ ए दी जिहड़ी लंबाई है, ओ ए साडे कोल वड्डे चक्कर दा अर्धव्यास है, तो इसकी लंबाई साडे कोल 5 सेंटीमीटर है। इस तो बाद ओ एम, ये साडे कोल छोटे चक्कर दा अर्धव्यास है, इसकी लंबाई साडे कोल 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ स्पर्श बिंदु उत्ते बने अर्धव्यास ਅਤੇ स्पर्श रेखा विचला कोण 90 डिग्री हुंदा है। ਅਤੇ स्पर्श रेखा विचला कोण 90 डिग्री हुंदा है। ठीक है, इसलिए ओ एम जो है ये साडे कोल लंब ए बी होएगा, ओ एम जिहड़ा ए बी दे उत्ते लंब होएगा। ठीक है, इसे ढंग दे नाल असीं हुण ये कह सकते हैं क्योंकि ए बी साडे कोल वड्डे चक्कर दी जीवा है, तो केंद्र तो जीवा उत्ते सुट्टिया गया लंब केंद्र नूं बराबर दो भागां दे विच वंडदा है। केंद्र तो जीवा ते सुट्टिया गया लंब जीवा नूं दो बराबर हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ है, दो बराबर भागां ਵਿੱਚ इसलिए ए एम बराबर एम बी है। ठीक है, ए एम साडे कोल एम बी दे बराबर है। ठीक है, हुण समकोणी त्रिभुज ओ एम ए दे विच हुण समकोणी त्रिभुज ओ एम ए विच ओ ए दा वर्ग बराबर ए एम दा वर्ग यमा ओ एम दा वर्ग होएगा। ठीक है, करण दा वर्ग बराबर आधार दा वर्ग जमा लंब दा वर्ग। करण साडे कोल 5 सेंटीमीटर है, तो लंब साडे कोल 3 सेंटीमीटर है। तो करण की कीमत जी 5 असी ले लाँगे ओ ए एम की कीमत असी पता करांगे, तो ओ एम की जी लंबाई है साडे कोल 3 सेंटीमीटर है। तो ये बन गया जी 25 बराबर ए एम स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9। 25 के विचों 9 नूं जेकर असी घटावांगे साडे कोल 16 बन जाता है। सो ए एम स्क्वायर जिहड़ा है साडे कोल 16 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये विचों ए एम की कीमत साडे कोल बन जाएगी 4 सेंटीमीटर दोनों पासे वर्गमूल लैंदे।
ठीक है। तो ये साडे कोल अद्धी जीवा की लंबाई जी पता चल जाती है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जेकर ए एम 4 सेंटीमीटर है तो आप गल कर चुके हैं ए एम तो एम बी की लंबाई बराबर होएगी तो एम बी भी साडे कोल 4 सेंटीमीटर होएगा। ठीक है, हुण असीं ए बी की जी लंबाई है वो पता करनी है। हुण ए बी बराबर ए एम जमा एम बी। ठीक है, और ए एम तो एम बी की कीमत जी बराबर है, इस करके एम बी की जगह पर भी असी ए एम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एम बी बराबर ए एम है। ठीक है, तो ए बी जोड़ा है साडे कोल बन जाता है 2 गुणा ए एम। ए एम की लंबाई साडे कोल 4 सेंटीमीटर है तो 2 गुणा 4 ये साडे कोल 8 बन जाएगा। ठीक है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। सो असी लिख सकते हैं इस तरह लोड़ींदी जीवा की लंबाई, लोड़ींदी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, लोड़ींदी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है तो इनू तुसी जरूर समझना है हर एक चीज़ में जो भी कॉन्सैप्ट आप वरते ने। ठीक है, एक दो बार करोगे तो आसानी के नाल सारिया चीज़ां जिहड़ियां समझ आ जाएंगी। ठीक है जी, तो इस तो बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल साडे कोल है, जेकर एक बिंदु P तो O केंद्र वाले किसी चक्कर ते PA PB स्पर्श रेखावां आपस में 80 डिग्री के कोण ते झुकियां होण तां POA पता करो। ठीक है, तो ये साडे कोल चक्कर है एक, तो इस चक्कर के बाहर एक बिंदु है P और इस बिंदु तो P नू चक्कर नू 2 स्पर्श रेखावां जिहड़ियां खिंचियां गईयां ने, एक साडे कोल ये हो जाएगी, दूसरी स्पर्श रेखा असीं दूजे पासे बना लेंगे हैं। ठीक है, ये बिंदु P है और एक P A स्पर्श रेखा और ये साडे कोल P B स्पर्श रेखा। ठीक है, चक्कर का जिहड़ा केंद्र है वो साडे कोल बिंदु O ते होएगा। ठीक है, वो बिंदु साडे कोल इत्थे किते असीं लगा लेंगे बिंदु O। ठीक है, ओ ए ते ओ बी नू भी मिला देने हैं। लो जी, ठीक है। तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ दोनों स्पर्श रेखावां ने आपस ਦੇ 80 डिग्री ਤੇ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ दसिया गई ने। ठीक है, तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ ਉਹ 80 डिग्री होएगा। ਅਸੀਂ ਕੋਣ पी ओ ए पता करना है। ठीक है, तो पहले ਅਸੀਂ P ਨੂੰ O ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। तो असी जो कोण पता करना है वो है साढ़े कोल POA। ठीक है, तो ये चीज़ां असी जिन्हां दी वरतों करांगे उहदे विच सब तो पहला तो यह है कि अर्ध व्यास ते स्पर्श रेखा इन्हां दे विचला जिहड़ा कोण है स्पर्श बिंदु ते वो 90 डिग्री होएगा। ठीक है, इसी तरह इधर जिहड़ा कोण है ये भी साढ़े कोल 90 डिग्री होएगा। ठीक है, तो ये साढ़े कोल एक सम जिहड़ी चतुर्भुज है वो बन जाती, क्वाड्रीलेटरल बन जाती APOB। ठीक है, इसके चारों कोणों का जिहड़ा जोड़ है वो साढ़े कोल बनेगा 360 डिग्री। ठीक है, एक ए कोण सानू पता है, ए भी कोण पता है, ए भी कोण पता है, तो चौथा कोण जिहड़ा असी AOB है वो पता करांगे। ठीक है, AOB कोण का जिहड़ा अद्ध है साढ़े कोल हाफ है वो कोण POA बन जाएगा। ठीक है, तो आओ इनू असीं किवें लिखांगे हल। चतुर्भुज PAOB या इस तो पहला असीं लिख लैंदे कि कोण जिहड़ा सानू जो भी दिता है कोण APB साढ़े कोल 80 डिग्री है, कोण APB बराबर 80 डिग्री। ठीक है, कोण PAO अते कोण PBO अते कोण PBO, PAO अते PBO इन्हां दोनों का माप 90 डिग्री है। ये क्यों 90 डिग्री है असीं इत्थे लिख दांगे, इसका कारण है साढ़े कोल अर्ध व्यास अते स्पर्श रेखा विचला कोण।
ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਅਤੇ स्पर्श रेखा विचला कोण। ठीक है, तो हुण चतुर्भुज पी ए ओ बी विच चतुर्भुज पी ए ओ बी विच हाँ जी कोण पी ए ओ प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ बी पी या पी बी ओ लिख सकते हैं असी पी बी ओ प्लस कोण ए पी बी। ठीक है, ए वाला कोण साडे कोल पी ए ओ हो गया, उस तो बाद ए ओ बी कोण, उस तो बाद पी बी ओ कोण ते ए पी बी कोण। ठीक है, चारों कोण असी लिख लेने बराबर, इन्हां दा जोड़ साडे कोल हमेशा हुंदा है 360 डिग्री। ठीक है, तो इन्हां दीयां कीमतां जिहड़ियां असी भर लैने आ। सब तो पहला जिहड़ा कोण है साडे कोल 90 डिग्री होएगा। कोण ए ओ बी दी कीमत असी पता करनी है। कोण पी बी ओ ये भी साडे कोल 90 डिग्री है और ए पी बी दा माप है सानू 80 डिग्री दिता होया। ठीक है जी, तो इन्हां सारे कोणों का जोड़ा जोड़ है साडे कोल वो की बन जाता है ए ओ बी जमा 90 90 180 180 ते 80 260 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए ओ बी का जोड़ा माप है साडे कोल 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री बराबर 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, तो कोण ए ओ बी साडे कोल 100 डिग्री बनेगा 100 डिग्री। बट सानू जड़ा कोण वो पी ओ ए पता करने वास्ते किया गया है। ठीक है, जेकर पूरे कोण का माप साडे कोल 100 डिग्री है तो ये जड़ा कोण है साडे कोल ये पूरे कोण का अद्धा होएगा पी ओ ए। ठीक है, पी ओ ए ते पी ओ बी दोनों का माप बराबर होंदा है, तो पी ओ ए कोण जड़ा है साडे कोल ए ओ बी कोण का हाफ हो जाएगा। हुण कोण पी ओ ए बराबर है साडे कोल कोण ए ओ बी बटा 2। इनू तुसी याद रख सकते हो। लो जी, इस तरह साडे कोल जिहड़ा लोड़ींदा कोण है उहदा माप 50 डिग्री बन जाता है। ठीक है, ये दोनों जिहड़ियां त्रिभुजां ने आपस दे विच सरबंग सम हुंदियां ने। जिवें ये वाली करण जिहड़ा है स्पर्श रेखावां दी लंबाई बराबर है, साडे कोल सांझी भुजा हो जाती है दोनों की। ठीक है, दोनों दे विच 90 डिग्री है, तो आर एच एस नियम के अनुसार दोनों सरबंग सम, इसलिए इन्हां दे सारे हिस्से जिहड़े वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कोण साडे कोल नीचे वाले कोण के बराबर होंगे, तो दोनों का जोड़ जोड़ा साडे कोल 100 दिता होया, तो मतलब 50 इधर होएगा 50 इधर होएगा। ठीक है, इस ढंग के नाल इहनूं असीं समझ सकते हैं तो याद भी रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तो बाद अगला सवाल देखते हैं। इस तो बाद अज के लेसन का आखिरी सवाल है साडे कोल दिते चित्र विच टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी चक्कर ते दो स्पर्श रेखावां। ठीक है, टी पी ते टी क्यू साडे कोल दो स्पर्श रेखावां ने। कोण पी ओ क्यू साडे कोल 110 डिग्री का है, तो कोण पी टी क्यू कोण असीं पता करना है। तो ये भी बिल्कुल उस ढंग के नाल हो जाएगा। साडे कोल स्पर्श रेखावां ते अर्ध व्यास विचले कोण जिहड़े 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, और इस चतुर्भुज पी टी क्यू ओ दे विच 3 कोण सानू पता है, तो चौथे कोण का माप असीं पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हल हाँ जी, कोण चतुर्भुज पी टी क्यू ओ विच चतुर्भुज पी टी क्यू ओ विच पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। ठीक है, तो कोण टी पी ओ बराबर कोण टी क्यू ओ ये दोनों 90 डिग्री, दोनों का माप जो 90 डिग्री होएगा। क्यों, यदा भी कारण असीं नाल लिखांगे अर्ध व्यास अते स्पर्श रेखा विचले कोण। अर्ध व्यास अते स्पर्श रेखा विचला कोण। ठीक है,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਣ ਪੀ ਟੀ ਕਿਊ प्लस कोण टी पी ओ प्लस कोण टी क्यू ओ प्लस कोण पी ओ क्यू। इस सब का जोड़ा माप है वो साढ़े कोल 360 डिग्री है। पी टी क्यू की कीमत असी पता करनी है। ये साढ़े कोल 90 डिग्री का कोण है। टी पी ओ 90 डिग्री। ठीक है, इस ढंग के नाल ये कोण भी साढ़े कोल 90 डिग्री का है टी क्यू ओ ते पी ओ क्यू कोण सानू 110 डिग्री दिता गया। तो ये तिना कोणों का जोड़ असी करांगे तो इनू 360 दे विचों घटा देंगे। तो कोण पी टी क्यू इक्वल्स टू इन्हों का जोड़ पहला असी देख लें 90 90 180 और 180 190 290 ये साढ़े कोल 290 डिग्री जड़ा बन जाता है। ठीक है, तो कोण पी टी क्यू की कीमत पता करने के लिए असी 360 डिग्री के विचों 290 नूं घटा देंगे। तो ये साढ़े कोल आ जाएगा 70 डिग्री 70। लो जी, ठीक है, इस तरह लोड़ींदा कोण जड़ा है पी टी क्यू उहदा माप साढ़े कोल 70 डिग्री बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैनू उम्मीद है कि हर एक सवाल नूं तुसीं बहुत ध्यान दे नाल देखिया होएगा। इनू असीं इवें भी इत्थे कर सकते हैं कि साढ़े कोल ये जिहड़े दोनों कोण हुंदे ने टी अते ओ बिंदु ते जिहड़े बनदे कोण ने ये संपूरक होंगे ने। इन्हां दा जोड़ जिहड़ा साढ़े कोल 180 डिग्री हुंदा है। ठीक है, जेकर ये कोण 110 डिग्री का ये कोण साढ़े कोल 70 डिग्री का होएगा ही होएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो दे विच अगले लैसन दे सवालों दे नाल।